We have a very special guest who's a very dear friend of mine. His name is Dashrath Luba, and Dashrath is assistant manager CSR at a company which is known as Vedanta Limited. It's a very reputed company, and like most of you might have heard about the company as well. So, why we have Dashrath over here is because this guy had the highest package in our entire batch when we were passing out the last year in terms of CSR, while I backed the highest package in HR when we were passing out last year. A lot of people, keep approaching us, me and him, asking about, how do we take the highest placements that are existing in our college, या फिर हम लोग prepare कैसे करें अपनी placements के लिए, which is the reason that we thought of conducting this episode and starting with the first episode. I'm glad that I have one of my best friends who's going to help me out in this episode. All right, so Dashrath, start करते हैं. सबसे पहले, since the topic is about how to grab the best placements, I'd like to understand, like, what do you think, according to you, तुझे क्या लगता है कि what are the best placements? I mean, how would you identify best placement? Okay, so Soham, first of all, thanks for inviting in to start such a great initiative. You said, okay, what is the best placement? So, so we can figure it out in two ways. First of all, everyone is looking for the packages because when we were in the college and companies are coming for the placements, हम ज्यादा ये नहीं सोचते कि वर्क रोल क्या है, हमारा जॉब रोल क्या है। सेकंड चीज ये है कि कंपनी का कल्चर कैसा है, लोकेशन कैसा है। हम ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि कोई भी लोकेशन होगा, आई विल डेफिनेटली क्रैक इट। पैकेज अच्छा होना Right. चाहिए एंड कंपनी डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, बड़ा ग्रुप होना चाहिए। तो सबके दिमाग में ये एक परसेप्शन रहता है जो कि कुछ हद तक सही भी है कि अगर आप बड़े अच्छे कॉरपोरेशन के साथ काम कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है ग्रोथ में। सो अच्छा पैकेज इन द सेंस आप देखोगे तो टीयर कॉलेजेस पे काफी डिपेंड करता है कि अगर आपका कॉलेज कौन से कैटेगरी में फॉल करता है। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी एंड आईआईएम्स, सो यू विल डेफिनेटली लुकिंग फॉर द पैकेजेस कॉलेजेस वेयर रिसर्च बेस्ड अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो प्लेसमेंट है ऑन एन एवरेज जो हाईएस्ट पैकेज जाता है वो 10 to 15 lakhs पे जाता है। एक्सेप्शनल केसेस है कुछ जहां पर 18 to 20 lakhs तक पैकेज ऑफर करते हैं कॉर्पोरेशंस जो है। ये ये मेजरली तीन क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि एक पैकेज क्या ऑफर कर रहा है कंपनी, सेकंड वेदर इट इज अ बिग कॉर्पोरेशन, नॉट वेदर इट इज मोनो, आई मीन बिजनेस डोमिनेटिंग कंपनी, अपने फील्ड का जो बादशाह कंपनी होता है उसमें हर एक का ये सोच रहता है कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूँ। लाइक समवन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वांट टू ज्वाइन टीसीएस, someone Right. from manufacturing industry want to join the Reliance, and like mining industry, I always mesmerized by the Vedanta, like I want to join Vedanta anywhere. So this is Right. how the persons are persons have perception Having a regarding the different placements. perception. These are how Correct. can we figure out what is the best place. Correct, correct, correct. So, but then what was shocking for me जब मैं research कर रहा था हमारी podcast के लिए, I was going through different sources, and what came shocking to me is कि can you imagine कि एक MBA post graduate की at present 2023 का latest data मिला मुझे from Glassdoor. So Glassdoor ने एक सर्वे किया था, and according to it जो एंट्री लेवल रोल्स होते हैं वहां पे एवरेज पैकेज इन एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट इज गेटिंग इज अराउंड 4.5 lakhs per annum, which is very low, right? And the Yes. overall package is around 7.7 lakh per annum for MBA postgraduates. This is a research done by Jaro Education, right? So आप entry कर रहे हो 4.5 पे, and then overall आपका 7.7 है. So I think today's time, I don't think कि किसी भी आप city में हो तो you are earning less than around 40,000 or maybe 50,000, and you can have a very good life, right? So I think like we keep on seeing these tweets जो कि आते रहते हैं. अब तो it's called X, तो X पे जितने लोग भी लिखते हैं, बैंगलोर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज बोल रहे होते हैं. So it also depends upon the city which you are living in, but to be taking an average, considering the inflation and the current situation, I think Yes. 50,000 के आसपास तो एक बेयर मिनिमम होना ही चाहिए, जो लाइक हम सबको लगता है.
currently the situation is कि we are just at an average of 4.5 lakhs per जी annum at the entry level jobs, which is very shocking for me. So what would could we say is that and top B schools का data बोलता है IIMs with the highest package or the average package that is going is around 30 to 35 lakhs per annum, right? So this goes for the tier one institutes like you said, right? So the best institutes and average colleges ka like we discussed. So what I'm trying to say is ki let's set the expectations right over here. When the average is around 4.5 lakhs per annum for any entry level role for a MBA graduate, तो हमें कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बेस्ट प्लेसमेंट की जब हम टाइटल दे रहे हैं तो उसपे व्हाट इज दैट बेस्ट फिगर? Is going above average a good thing? Is what is an above average figure? What is a the best figure? So I'll just give my figure and I just want your opinion कि आप भी एक अपना एक ऐसा ही अंदाजा दो. तो मेरे हिसाब से for MBA, considering MBA, I think यस around 6 LPA would be a good above average placement. And to get a best placement, I think it would be around 8 to 10 lakh के बीच में. If you are falling in, that means you are fortunate enough कि आप most of the people जो students है उनसे आप कहीं आगे हो. For that I would consider between the 8 to 10 वाला bracket में it would be a best placement for me. What's it for you? सो हम डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि जो डिमांड्स होती है स्टूडेंट के जो ख्वाब होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं कि लाइक आई विल नॉट सिट इन द प्लेसमेंट इफ इट इज नॉट अबव 8 लाख और 10 लाख। बट इंडस्ट्री जो ट्रेंड्स है वो टोटली डिफरेंट हमें शो करता है कि आईआईटी इवन आईआईटीज लाइक लास्ट ईयर इन बॉम्बे आईआईटी आई हैव गॉन थ्रू द वन रिपोर्ट्स some corporations offer 4.5 LPA package to the IIMs। सो हम समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है जब टॉप टीयर वन कॉलेजेस का ये हाल है कि वहां पर 4.5 LPA का पैकेज कंपनीज ऑफर कर रही है एंड स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन दोज पैकेज। सो टीयर थ्री कॉलेज वालों को हमें थोड़ा हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो इस तरह से रखनी चाहिए, इंडस्ट्री का ट्रेंड्स क्या चल रहा है, इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या है और हम कहाँ पर उसमें लाई करते हैं। तो इस बेसिस पे मेरा ये मानना है कि अगर इनिशियली जब आप किसी कॉरपोरेशन के साथ जुड़ते हैं तो अराउंड 40 to 50 thousand पर मंथ अगर आप अर्न कर रहे हैं तो इट विल बी बेटर, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के आप फिर प्लेसमेंट्स की राह देखते रहते हैं कंपनीज आएगी उसमें भी कॉम्पिटिशन्स काफी होता है, हायर पैकेज के लिए हर कोई कम्पीट करता है। तो Right. ये है कि अगर आप टीयर सिटी बेस्ड जाते हैं, अगर आप इनिशियल स्टार्टिंग में जब ज्यादा सेविंग्स वगैरह का नहीं सोचते, बट यस आपको लर्निंग्स के बारे में पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि मे बी यू विल अर्न 10-20 thousand लेस फ्रॉम योर फ्रेंड बट योर लर्निंग शुड बी हायर देन देयर। सो We are aiming कि हमें बेस्ट प्लेसमेंट्स लेना है. सो वी शुड बी एमिंग कि जितना हाई हम जा सके उतना हाई हम जाएं, हमारी तैयारी उस तरह से हो. बट देन नेवरदलेस हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे बहुत ज्यादा चाहिए कुछ, बिकॉज इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस को हमें ध्यान में रखना है. जैसे मैंने एमबीए के फिगर्स दिए, सो आई ऑल्सो बी गिविंग सम फिगर्स फॉर इंजीनियरिंग एज वेल, जो कि मैंने डेटा रिसर्च किया है. सो एनआईआरएफ का डेटा है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क, सॉरी. सो उसके डेटा के हिसाब से 4.5 अगेन LPA is the average graduate engineering trainee is earning, right, at an entry level role. And an overall average of the entire industry, if we see, it's around about 8 lakhs per annum, right? And the top IITs also are having an average of around 11 lakhs per annum, right? So to set the tone right, I think 50,000 in hand अगर हम बोल रहे हैं, right? And I think that is a very good amount. 50,000 अगर आप in hand ले लेते हो, so उस केस में your like net pay is around 6 LPA, which means कि आपका जो CTC हो जाएगा, that would again be around 8 LPA or something like that. राइट. सो आई थिंक जो हमने स्टार्टिंग में बात करी बिटवीन 8 to 10, जो वो ब्रैकेट है, आई थिंक उस ब्रैकेट को हम बहुत एक अच्छा ब्रैकेट कंसिडर कर सकते हैं. इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रैकेट्स अगर आप उसके अंदर फॉलो कर रहे हो तो, गिवन द करंट इंडियन सिनारियो. एंड इफ इट ऑल अगर हम एवरेज की बात करें, सो वी ब्रिंग इट डाउन टू अराउंड 5. सो बिकॉज 4.5 का एवरेज चल रहा है, तो लेट्स से इट्स 5 यस का एवरेज, राइट? So anywhere, if you are getting below that, don't be disheartened. Again, you can still be aiming for whatever is the best. Okay, so we are done with that. Let's move ahead.
and let's talk about the college life cycle. Right, so I want to start with not directly with the placements, but I want to start कि placement से पहले क्या क्या होता है. Right, so giving you a situation like जैसा आपका रहा है, जैसा मेरा रहा है, we come from a very middle class family, right? And हम लोग अपने घर से बाहर निकलते, सब लोग कॉलेज में जाते हैं. पूरी उम्र हम लोग इसी चीज की तैयारी करते हैं कि अच्छा कॉलेज मिलेगा एंड हम एक वहां से अच्छी प्लेसमेंट लेके बाहर निकलेंगे. Right, so what do you think once you enter into the college, right? ऐसा क्या होता है कि some people get the best placement and some people are still not able to get the best, not even the average, and fall below the average as well. राइट, सो इन तीनों कैटेगरी ऑफ पीपल पे आई लाइक टू टॉक एंड उनकी लाइफ साइकिल में क्या क्या गुजरता है. लाइक यू टू शेयर सम थॉट्स ऑन दैट. आपको क्या लगता है कि हाउ डज दिस लाइफ साइकिल स्टार्ट व्हेन एंटर्स द कॉलेज टिल द प्लेसमेंट टाइम? क्या क्या उसके बीच होता है एंड उस समय उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जी, बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन आपने किया सोहम कि एक कॉलेज लाइफ साइकिल जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी स्टूडेंट्स के लिए टू गेटिंग द बेस्ट प्लेसमेंट्स. सो जब राइट. हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा परसेप्शन होता है, जो हम सब लोग सुन के आए होते हैं कि कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, यानी कि हमको एंजॉय करना है, हमको पढ़ाई भी करना है, एंड एट द एंड वी वांट चीजें जो कि एक इंडिविजुअल के ग्रोथ में बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, लाइक सोशलाइजेशन विद द राइट पर्सन. सोशलाइज होना बहुत ही जरूरी है एट कॉलेज लाइफ. आप जितना ज्यादा से ज्यादा नेटवर्किंग करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे, उतने ही आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में मालूम पड़ेगा कि राइट. आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उस फील्ड में और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. सपोज आप और मैं दोनों साइंस बैकग्राउंड से आते हैं. हमको इनिशियली पता ही नहीं था कि सोशल वर्क नाम का कोई फील्ड है, सोशल वर्क स्टडी क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसमें आगे कैसे हम प्लेसमेंट्स ग्रैब करेंगे. मोर और लेस हमको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था. बट व्हेन वी गो आउटसाइड, वी मेट द पीपल, देन वी केम टू नो दैट कि सोशल वर्क नाम का भी कोई प्रोफेशन है जो कि काफी ग्रोइंग प्रोफेशन है, उसमें ये अपॉर्चुनिटीज है. तो ये मेरा सजेशन रहेगा हर एक स्टूडेंट से कि जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं कॉलेज के, बैचलर्स के या मास्टर्स के, तो ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज हो लोगों से, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने का कनेक्ट करें, वो चीज करें. दूसरा चीज है कि काफी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल का जो वेलबींग होता है थ्रू आउट देयर कॉलेज लाइफ साइकिल, उसमें डिपेंड करता है, लाइक रिलेशनशिप्स, देन सम अदर फैक्टर्स लाइक देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स कॉलेज इवेंट्स एंड ऑल, पॉलिटिक्स एंड ऑल. सो उसमें भी इन्वॉल्व होने से कोई बुरी बात नहीं है. आप जब जितना ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं उस चीज में, तो कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेते हैं, रिलेशनशिप हैंडल करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, सारी चीजें. तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पूरी लाइफ साइकिल के दौरान मेन सोशलाइजेशन पे ध्यान देना अपना, कि आप किस लोगों के साथ सोशलाइज हो रहे हो, आपका जो पीयर ग्रुप्स है वो किस डायरेक्शन में है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो. बिकॉज एट द एंड, जब अगर आप जिस स्टेज पे जाना चाहते हैं वहां पर नहीं पहुंचते, देन दे आर फीलिंग रिग्रेटिंग अबाउट दैट कि हमारे पास टाइम था बट वी कुडंट डिड इन अ राइट वे. राइट, सो आई थिंक बहुत सही बात है जो आपने बोली. एंड इसके साथ साथ मैं बस ये चीज जोड़ना चाहूंगा कि जब आप कॉलेज में आते हो तो पहले से ऐसा सोच के मत आओ कि मुझे सिर्फ यही करना है. राइट, तो आप अपना माइंड यस, जितना ब्रॉड रखोगे, अपना होराइजन जितना ब्रॉड रखोगे, एंड आप ओपन रखोगे अपने आप को टू न्यू एक्सपीरियंसेस, टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, उतना आपको फायदा मिलेगा. And studies have suggested, I got some data also, but I'll not quote it right now because of the time. But what I want to say is studies have suggested that the recruiters are also looking out for several other things apart from your technical knowledge, right? So most of the recruiters are saying कि आपकी टेक्निकल नॉलेज एक अमाउंट तक मैटर करती है, बट देन उसके बाद व्हाट एक्स्ट्रा आर यू डूइंग राइट इन योर कॉलेज लाइफ? आप अलग से क्या कर रहे हो? बिकॉज पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं. इट मे हैपन कि 7 लोगों के शायद सेम ग्रेड है. इंजीनियरिंग में तो ऐसा बहुत होता था कि पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस होता था हमारा सीजीपीए. तो रिक्रूटर कैसे डिसाइड करेगा? उसके लिए दैट पर्सन इज लुकिंग आउट एट योर पर्सनालिटी एंड योर engagement during the college time. So network a lot, यस, like you said. डेफिनेटली. So that is well taken up.
Now, let's move forward and let's also, analyze key placement में when you are going to sit, तो कौन कौन सी stages हैं जो placements में आती है, and हर एक stage में how can you, be the best of that stage so that you can promote to the, get promoted to the next stage and finally get placed with your dream company. So let's start with the aptitude first. So a lot of companies these days are starting with the online aptitude test, right? So online test के लिए what do you recommend कि how do people prepare and what can be done about it ताकि वो हम pass कर सके. सी इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, मे बी इट वेरी फ्रॉम योर्स एज वेल। जब एप्टीट्यूड का हम प्रिपरेशन करते हैं तो एज सच कुछ खास प्रिपरेशन नहीं होता है, एंड ये मेरा सजेशन भी है कि ज्यादातर जो आपका प्लेसमेंट के रिलेटेड जो प्रिपरेशन होता है उसमें आप एप्टीट्यूड को ज्यादा टाइम ना दें। क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जो कि आपके लॉजिकल थिंकिंग पे, लॉजिकल आपका जो एप्टीट्यूड है उसके बेस पे होता है। एंड ज्यादा अगर आप कितना भी टाइम देंगे वो पूरा उनका जो होता है वो आप नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। तो एप्टीट्यूड पे मेरा यही फोकस है कि जो आप एप्टीट्यूड देने बैठते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है बेसिक, जो कि हम ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते थे। इवन जब मैं भी प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जब मैं एप्टीट्यूड देने गया था, तो मेरे से भी ये गलतियां हुई थी कि जो बेसिक चीजें प्रिपेयर करनी होती, जैसे कि एक लैपटॉप चाहिए मेरे को, अच्छा इंटरनेट, मैं फोकस्ड रह के एप्टीट्यूड दे पाऊँ। तो अगर ये जो बेसिक चीजें हैं, अगर यही हम अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो मोर और लेस हमारा जो एप्टीट्यूड का टेस्ट है वो सही रहेगा, उसमें कोई दूसरा चांस नहीं है। अलग से आपको कोई ऐसे स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सो आपका क्या कहना है सोम इस बारे में? यस आई अग्री, वो तो जरूरी है ही बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर मेरा भी फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट था एंड मैं उसी वजह से लाइक आउट हो गया था पूरे एप्टीट्यूड से बिकॉज मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिसरप्ट हो गया था बीच में एंड वो सॉफ्टवेयर बिकॉज दीज डेज एआई इज सो पावरफुल, सो सॉफ्टवेयर ने ऐसा डिटेक्ट किया कि मैंने अपना स्क्रीन मिनिमाइज किया है टू रिकनेक्ट माई इंटरनेट एंड इट सेड कि आई हैव लुक्ड अवे फ्रॉम द स्क्रीन. So, yes, these are some of the things I totally agree जिसको हम लोग overlook कर देते हैं. But I would also like to say, in my opinion, मुझे ऐसा लगता है कि आपको aptitude की भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए. Because I would not just talk about my masters, in my bachelor's also, I've seen companies जिनका aptitude काफी hard होता था. But वो companies बहुत अच्छी थी. राइट, सो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मोर देन 50% ऑफ द पीपल वो तो एप्टीट्यूड में ही बाहर हो जाते हैं. राइट, जहां पे बिकॉज आई रिमेम्बर इंजीनियरिंग में हमारे ऐसा होता था कि 300 300 400 लोग एक ही प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं. राइट, और उसमें से मतलब मोस्ट ऑफ देम 60% जो लॉट होता था वो उसी में बाहर हो जाता था एप्टीट्यूड में. सो बहुत बार मुझे ये भी लगता है, एंड आई टॉक टू द स्टूडेंट्स अबाउट दिस, कि हम लोग जीडी पीआई इन सब की बहुत यस। ज्यादा तैयारी करते हैं बट हम फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लेसमेंट भूल जाते हैं विच इज द एप्टीट्यूड. सो मेक श्योर कि आप एप्टीट्यूड क्लियर कर रहे हो, फॉलो सम गुड बुक्स फॉर दैट, एंड आई वुड सजेस्ट कि एक नॉर्मल आप एक क्वेश्चनेयर लेके रखो एप्टीट्यूड का, या फिर कोई टेस्ट सीरीज लेके रखो एंड लोग एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन बहुत सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल है. जस्ट गो ओवर देयर एंड कीप रेगुलरली गिविंग दीज टेस्ट. अगर आप वो भी देते रहते हो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है एंड आपको किस पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है. So now let's quickly move on to how do we build a good resume, because इस पे बहुत सारे लोगों ने हमसे questions पूछे हैं, right? But I'd like to start with you. You tell me कि what are those things जो आपको लगता है कि लोग usually mistake करते हैं अपने resume में. यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोगों ने नोटिस किया है कि एक मेंटर होते थे वो बोलते थे कि हम ज्यादा बहुत ही डिस्क्रिप्टिव रेज्यूम बना देते हैं। लाइक 2 पेज का, 3 पेज का रिज्यूम होता है, जबकि कोई फ्रेशर का 1 पेज या 1.5 पेज से ज्यादा का रिज्यूम होना ही नहीं चाहिए। ये जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जो एचआर रिक्रूटर एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि एज ए फ्रेशर तुम्हारा इतना तो एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा सीवी 1 या 1.5 पेज से ज्यादा जाए। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जितना भी सीवी में अपने प्रोजेक्ट्स, आपकी लर्निंग्स जो इनपुट्स करते हो, मिनिमम डिस्क्रिप्टिव हो, एकदम ही ब्रीफ हो, और उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, वही आप सीवी में इनपुट कर। लाइक
कई लोगों का होता है कि मैं जितना ज्यादा अच्छा अच्छा लिखूंगा सीवी पे उतना ही बेटर रहेगा, मैं स्किल शो कर पाऊंगा। लेकिन जब आप इंटरव्यू के टाइम पे उसी स्किल्स को, जो चीज आप मेंशन किए आपके सीवी में, उसी को आपको जस्टिफाई करना रहेगा। आपकी लर्निंग्स क्या रही है थ्रू आउट योर एकेडमिक्स, सो यही मेंशन कीजिए, उसके बेस पे ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ज्यादा फैंसी चीजें ना लिखे सीवी पे, जो आपकी एक्चुअल लर्निंग है, जो आप एक्चुअल स्किल पजेस करते हैं, वही लिखे, ताकि आप उनको बेटर जस्टिफाई कर पाए एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। आई टोटली अग्री। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप अपना जो भी रिज्यूमे में लिख रहे हैं वो एकदम सच हो। एंड अगर आप यस। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी लिख रहे हो तो एटलीस्ट ऐसा हो दैट समथिंग दैट यू कैन जस्टिफाई। राइट, बहुत बार ऐसा होता है लोग ऐसी ऐसी चीजें मेंशन कर देते हैं जो उन्होंने कभी करी ही नहीं। एंड व्हेन द रिक्रूटर एग्जैक्ट। आस्क्स यू कि भाई इसका कुछ एक एग्जांपल दीजिए या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, तो देन द पीपल गो ब्लैंक। राइट, सो resume is not at all about copying and pasting. That's a very wrong strategy if you are doing that. सेकेंडली आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि दशरथ ने होगा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स में आपके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए जिस भी चीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि मैक्स टू मैक्स 4 बुलेट पॉइंट्स और मैक्स एट ऑल 5 बुलेट पॉइंट्स आर मोर देन इनफ टू डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस। और हर एक बुलेट पॉइंट शुड बी क्वांटिफाइबल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यस। अगर आप कोई चीज लिख रहे हो तो यू हैव टू शो कि आपका इम्पैक्ट क्या है विद द हेल्प ऑफ डेटा। राइट, सो इफ अ पर्सन इज इन सेल्स, so he would say कि I adopted this strategy to make the sales go up by 40% or maybe 50% or whatever it is, or achieve the year end target by 50% more. Right? So write तो always these things in quantifiable, measurable terms. जो भी आपने किया है उसको इस तरह से लिखो। वन मोर थिंग, आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट कि जीडी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका लिसनिंग और आपका बिल्डिंग कंसेंसस वाला जो स्किल है वो कितना है आपके अंदर। बिकॉज रिसर्च हैज सजेस्टेड दैट पार्टिसिपेंट्स who integrate the ideas of others have a 40% higher chance of getting selected in a GD, or acing up in a GD. So it is very important कि आप बाकी लोगों की बात कितनी सुनते हैं, उसको अपने ओपिनियंस के साथ अमेलगेट करके हाउ डू यू कम अप विद समथिंग न्यू। अब एक चीज और दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन एल्स, मी एंड दशरथ वी कम फ्रॉम द सेम ग्रुप, वी हैव अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। एंड हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू प्रैक्टिस मॉक जीडीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग मॉक जीडीज भी प्रैक्टिस करें, बिकॉज मी एंड दशरथ वी कम फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। राइट, सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रादर। सो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सब लोग एक रूम में बैठ के मॉक जीडी प्रैक्टिस करते थे, जिससे हमें पता चल जाता था कि ये इस व्यक्ति का ये पोर्शन वीक है या फिर ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट, तो उसको वो चीज थोड़ी मेलो डाउन करनी है। या फिर किसी की ओपिनियन इतने अच्छे से खुल के नहीं आ रही है ग्रुप के अंदर, तो उसको अपने ओपिनियंस और बोल्डली बोलने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो थी दैट वी यूज्ड टू प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ मॉक जीडीज। So it is very important that you are aware of your strength and your weakness while you go for a GD. तो उसके लिए have some mock GDs around the people, with the people who are around you. That is very important for you. And that can be anyone. That can be literally anyone. हम लोग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, आई रिमेम्बर कि हम लोग बैचलर्स वालों को भी बुला लेते थे। कोई दूसरी फैकल्टी का, कॉलेज का होता था, उसको भी बुला लेते थे, हमारे भी फ्रेंड्स होते थे। एंड देन हम लोग यस। जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, तो भी हम लोग जीडी प्रैक्टिस करते थे, तो दैट हेल्प्ड अ लॉट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड इन दिस, दशरथ? No, Sam, I think we have covered almost every factors that is affecting the result of GD. We covered like confidence, then positive temperament, and active listening. So these are the three major factors which determine the result of your GD. So and yes, mock GD. So आप लोग सिर्फ अपने कलीग्स के साथ ही नहीं, बल्कि अपने एल्यूमनाइज जो कि एक अच्छे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो रिक्रूटर्स है, उनको बुला के अपने कॉलेजेस में मॉक डिस्कशन ड्राइव अरेंज कर सकते हैं, जो कि विद इन द क्लास एंड इंटर क्लास के बीच में भी हो सकता है। सो ये एक अच्छा अप्रोच होता है प्रैक्टिस करने का जीडी, की आप बार बार ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल रही है, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट पता चलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीडी सॉन्ग। राइट, सो वन थिंग एल्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर, एक फॉर्मूला है टू क्रैक द जीडी। लाइक बहुत लोग डरते हैं कि उन्हें स्ट्रक्चर करना नहीं आता, कि हम जो बोलने वाले हमें पता है हमें क्या बोलना है।
बट किस तरह से बोले, किस वे में बोले, वो समझ में नहीं आता है. So for those people, there's a formula called PrEP, P-R-E-P. So PrEP means point. You have a reason for that point, example, and the point again. ओके. सो यू स्टार्ट विथ समथिंग, आप कोई पॉइंट बोलते हैं, देन आप उसका रीजनिंग देते हैं कि ये पॉइंट ऐसा सही क्यों है, देन आप उसका एक एग्जाम्पल देते हो कि आप प्रूव करते हो कि जो आप बोल रहे हो वो बात सही है, एंड देन आप उसको कंक्लूड करते हो, अपने पॉइंट को समराइज करते हो. एक चीज और जो मुझे बोलनी है, आई वांट टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस इन द जीडी, बिकॉज आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस इन दिस कॉन्वर्सेशन. मेरे जीडी में, क्योंकि मैंने बताया बहुत अच्छा बोलने वाले लोग थे, बट दे स्टिल डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, and three of us got selected. I definitely come from a communication background. मेरा हमेशा से communication बहुत अच्छा रहा है. But let me tell you that even after I've been doing corporate events, anchoring and stuff, but वहां पे मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस था. So being nervous is completely okay. जैसे ही जीडी का टॉपिक मिलता है, लॉट ऑफ पीपल जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन ऑन अ पेपर, कि बहुत तेज तेज लिखना, पूरा पूरा पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं लोग कि मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा. ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जस्ट टेक 1 मिनट टू थिंक. इफ एट ऑल 1 मिनट आपको सोचने के लिए दिया है, देन टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू थिंक एंड नोट डाउन योर पॉइंट्स इन वेरी ब्रीफ बुलेट पॉइंट्स में आपको लिखना है, पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है. एंड लेट द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द रूम कंक्लूड हिज पॉइंट. उसके बाद आप ये अपना पॉइंट बोलिए. बिकॉज अगर आपने पहले बोल दिया, एंड जो दिस पर्सन हु इज डोमिनेटिंग एवरीवन, वो आपके पॉइंट का फायदा उठा के उसको अपने पॉइंट में डाल के, ही वुड स्टार्ट डोमिनेटिंग द एंटायर डिस्कशन, एंड ही वुड टेक द एडवांटेज, अगर कोई शार्पर पर्सन आया है तो. सो माय सजेशन इज कि आप थोड़ा सा रुकिए. इफ यू आर नर्वस, डोंट गो फॉर द फर्स्ट ट्राई. Just wait for 2 3 speakers, and also let the most dominating, most powerful person speak, and then you take up from his point, from others point, and you beautifully present the summary of all the points that you've heard along with something of your own. So that would help you a lot in a GD. Okay, now that we are done with the GD, let's come to the PI round, which is one of the most important rounds, which is the personal interview round. What do you have to say about the PI thing? Because I'll again take the help of the research, which says that Yes. 75% of the hiring decisions are taken exactly during the GD or PI. सो रिक्रूटर अपने दिमाग में पहले ही डिसाइड कर लेता है जीडी में देखे कि अच्छा ये मेरा बंदा है, इसको मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ. या तो वो पीआई के दौरान जब पीआई चल रहा है उसको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन है, इसको मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ. बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास का जो एप्टी का स्कोर है, आपके मार्क्स हैं, वो सब मैटर नहीं करते. इन्हीं दो स्टेजेस में डिसीजन हो जाता है कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना Yes. So, Som, this is what our some best friends were actualizing during the interview of CMR and Adani. क्यों वो लोग ने जीडी में ही इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ा वहां पर रिक्रूटर के सामने कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर कुछ पार्ट में वो लेक भी कर गए तो भी वो नेक्स्ट राउंड के लिए फर्दर सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट हो गए. तो जीडी एक अच्छा इंप्रेशन बिल्डअप करने के लिए भी आप ऐसे उस नजरिए से भी देख सकते हैं कि आप जीडी में अगर अच्छा इंप्रेशन करते हैं रिक्रूटर के सामने तो ड्यूरिंग द पीआई अनकॉन्शियसली रिक्रूटर को आप एक हायर लेवल पे देखेगा. सो जीडी इज नॉट फॉर ओनली टू सिलेक्ट इन इंटरव्यू बट आपका इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस भी आपके जीडी का परफॉर्मेंस डिसाइड करता है. तो है. पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं दशरथ. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द थिंग्स यस. दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, किस तरह से पीआई के लिए प्रिपेयर करें? बिकॉज बहुत से लोग क्या करते हैं, दे जस्ट कीप इन माइंड कि हमारा टेक्निकल नॉलेज बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना. लोग रात दिन अपना सिलेबस रट रहे हैं, अपना कंटेंट रट रहे हैं कि मेरे से ये पूछ लिया तो, मेरे से वो पूछ लिया तो. सो वो राइट ब्लेंड क्या होता है, आपको क्या लगता है? टेक्निकल नॉलेज कितना पूछा जाता है एक इंटरव्यू में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके रिज्यूमे में से कितना पूछा जाता है, एंड लास्टली आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके बिहेवियरल स्किल्स जिन्हें हम कहते हैं, उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं? एक आपके हिसाब से एक अंदाजा परसेंटेज का बताइए, एंड देन वी डिस्कस ऑन. है कि जो एक अच्छा इंटरव्यू हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो वट एवर द रिसर्च आई हैव डिड एंड
माय पर्सनल इंटरव्यू जो हुआ उसमें ये फील किया कि जो 60 to 70% जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका सीवी बेस्ड होगा टोटली। वट एवर स्किल यू मेंशन इन योर सीवी, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए, उसमें क्या क्या मेंशन किए, उसी के बेस पे आपका इंटरव्यू हुआ। इन टर्म्स ऑफ वेदांता जहां पर मैं सिलेक्ट हुआ, इनफैक्ट जो मेरा 90% जो क्वेश्चंस थे एक रिक्रूटर की ओर से वो सीवी बेस्ड थे कि क्या क्या आपने प्रोजेक्ट्स किए, उसकी लर्निंग्स क्या रही, आपने चैलेंजेस क्या फेस किए, उसको मिटिगेट कैसे किया। सबसे पहले तो जब आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो तो टेक्निकल से पहले आप एक अपना सीवी जो है वो खुद से एक बार देखिए और खुद क्वेश्चन कीजिए कि अगर सीवी मेरे सामने आए तो मैं इस इंडिविजुअल को, इस कैंडिडेट को क्या क्वेश्चंस करूंगा। और जो जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो खुद में प्रिपेयर कीजिए कि ये स्किल्स है मेरे में, तो वो मैंने कहाँ यूज किया, उसको जस्टिफाई कैसे करोगे। जस्टिफिकेशन ऑफ योर पॉइंट्स वट एवर यू मेंशन योर सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जस्टिफाई करने में फेल्ड हुए तो रिक्रूटर को एक ट्रस्ट इश्यू आ जाएगा वहां पर कि वट एवर यू मेंशन योर सीवी इज टोटली रॉन्ग, आपने ये सब कुछ नहीं किया है, ना आप में ये स्किल्स है। पहला एंड फॉरमोस्ट पॉइंट ये कि आप अपना सीवी अच्छे से प्रिपेयर करो। सेकेंड थिंग अबाउट द टेक्निकल नॉलेज। जो रिक्रूटर के पास जो टेक्निकल नॉलेज होगा वो ऑब्वियस है कि कैंडिडेट के पास नहीं होगा। कैंडिडेट कहीं ना कहीं लैक करेगा क्योंकि एवरी हर एक क्वेश्चन का आंसर उसके पास नहीं होगा। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो यू कैन पोलाइटली से नो कि नहीं मेरे को नहीं आता है बट आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। सेम एग्जांपल वेदांता के साथ मेरा हुआ जब मेरे को पूछा कि आपने वेदांता का सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी है क्या, बट एट दैट टाइम इफ आई एम यस कि हाँ मैंने देखा है, मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस और आ सकते थे कि व्हाट इज द एबिटा, व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी रेटिंग ऑफ वेदांता एंड ऑल। अगर आपने नहीं किया तो ऑनेस्टली ना बता दीजिए एंड ये कॉन्फिडेंस दीजिए उनको कि नहीं इंटरव्यू के बाद या फ्यूचर में आप ये जरूर करेंगे। तो इससे एक पॉजिटिव जो आपकी इमेज होगी वो बिल्डअप होगी कि ऑनेस्टी जो एक होती है रिक्रूटर के क्राइटेरिया में वो वहां पर आपकी दिख जाएगी। ये मेजर थर्ड जो मेजर पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। कि अगर जो भी चीज आप बोलते हो, जो भी आप एक्सप्रेस करते हो अपना नॉलेज, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप बीच बीच में कहीं लैग करते हैं या लैग करते हैं, अगर आपको आंसर मालूम भी नहीं है और आपको टाइम चाहिए 1 minute 50 seconds, तो आप मांग सकते हैं उनसे कि यस वी नीड 30 सेकेंड टाइम, कैन वी टेक अ टाइम, और उसके बेस पे एक अच्छा सा आंसर बिल्डअप कीजिए और रिक्रूटर के सामने रखिए। तो आपका कॉन्फिडेंस एक दिखेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी जब आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करेंगे तो एक आपका अच्छा इमेज वहां पर क्रिएट होगा। दीज आर द थ्री थिंग्स ऑन विच आई हैव पर्सनली फोकस्ड मोर। हम आपका क्या रहा है कि आपका जब ग्रासिम के आदित्य बिरला में इंटरव्यू हुआ तो आपने क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस किया था और क्या प्रिपेयर ज्यादा किया था, और टेक्निकल का कितना पोर्शन रहा था, और बाकी जो अदर बिहेवियरल एंड सीवी बेस्ड होता है उसका कितना पोर्शन रहा था। So one thing is true, I totally agree to you कि most of the questions are based on your resume. आप resume में क्या लिखते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है. And then second comes कि आपका बैकग्राउंड क्या है, राइट. दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है. उससे डेफिनेटली टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. मेरे हिसाब से फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रियली वर्क अपॉन इज योर रेज्यूमे. बिकॉज उसको एक बार स्कैन तो करेगा ही रिक्रूटर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने से पहले, एंड आपके बारे में एक प्री कंसीव्ड इमेज भी वो बना लेगा, राइट. एंड दैट हैपेंस समटाइम्स कि आप वो इमेज चेंज कर देते हैं. कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, राइट. तो रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड व्हाट आई वांट टू से इज, एक क्वेश्चन जो सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, गिव मी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, राइट. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूरा का पूरा इंटरव्यू ड्राइव करता है आपका. एंड बहुत बार ऐसा होता है लोग इसी क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करते, बाकी सब कुछ प्रिपेयर कर देते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक छोटा सा, बढ़िया सा, ब्यूटीफुल सा 1 to 1.5 मिनट्स का एक इंट्रोडक्शन रेडी करो. It has to be in a chronological manner. Start with what's your background and tell them about which place you come from, how has been your family background. A very in very 1 or 2 sentences maximum, because this also shows your core values कि आपकी core values किस तरह की रही होंगी, right? And उसके बाद you tell them about your school education, then tell them about your university education, any internships that you have done, any co-curricular works that you have done, and then you must have one highlight in your entire introduction. एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको पता है कि दिस इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट और इसको मेरे को हाईलाइट करना ही करना है. वेन यू आर एबल टू डू दैट, आई एम श्योर कि आपका, अगर आपने अच्छे से हाईलाइट किया एक कोई स्किल उस फर्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी स्किल से पूछा जाएगा. आई एम 100% श्योर ऑन दिस, इफ यू आर एबल टू डू इट राइट.
तो रिक्रूटर आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि आपको ये चीज में इंटरेस्ट क्यों है, या फिर ये आप कहाँ करते हो, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, ऐसा कुछ। अगर आप वो नहीं कर पाते हो, देन they would come with some sort of backup and other types of questions. Secondly, coming on to the technical questions. टेक्निकल क्वेश्चंस में डेफिनेटली ऐसा होता है कि आपको सब चीज नहीं आ सकती, जैसा कि दशरथ ने बोला कि कभी कभी आपको नहीं आता, यू कैन सिंपली से कि आई गेट टू लर्न मोर अबाउट इट एंड और आई स्टडी मोर ऑन दिस शोज कि आप डरते नहीं हो जब आपको कोई चीज नहीं आती है। सो बिकॉज दिस वाज आस्क्ड मी अबाउट माय ओन इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेरे इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि मुझसे पूछा गया था कोई टेक्निकल क्वेश्चंस एंड थ्री टेक्निकल क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक, मैंने वो पूरा टॉपिक ही नहीं पढ़ा था। And outrightly on the face of the interviewer, I had said, "Ki, ma'am, I have not studied this particular topic, but I definitely read on it. Right now, I'm not aware." So then उन्होंने सामने से मेरे से पूछा कि आपने क्या पढ़ा है? We'll ask from that. And then I said कि मुझे ये टॉपिक आता है। उस टॉपिक से जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए, तो then my graph started going towards the upper side. राइट। सो कभी भी डरने की जरूरत नहीं इंटरव्यू में, यू ऑलवेज हैव दैट कमांड इन योर हैंड, इट डिपेंड्स कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हो। थर्ड एंड लास्टली इज द बिहेवियरल क्वेश्चंस। इट इज ओके अगर आपको टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता है, बट इट पुट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन अगर आप बिहेवियरल क्वेश्चन में कोई भी जवाब नहीं देते। नाउ दीज आर क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू सिचुएशन, आपको किसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा एंड पूछेंगे कि आप कैसा बिहेव करते हो वहां पे। देयर दे टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, या फिर और अदर स्किल्स जो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किए। दे माइट गिव यू अ केस स्टडी के एक कंपनी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, अगर आप उसके मैनेजर होते तो आप क्या करते, कैसे करते। सो द बेस्ट थिंग to do over here is to answer a behavioral question is to adopt the STAR method, STAR. STAR stands for situation, the task, the action and the result. सो आपकी क्या सिचुएशन थी, उस पे आपका टास्क क्या था जो आपको करना था, आपने क्या एक्शंस लिए, एंड फाइनली उसका आउटकम क्या आया, उसका रिजल्ट क्या है। सो दिस वुड हेल्प यू अलॉट अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। एंड जैसा कि दुष्यंत ने कहा, टेक सम टाइम। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा एकदम से जवाब देना है। नो, डोंट डू दैट। टेक 1 minute, टेक 2 minute, ask the interview if you need more time. It is totally okay. But when you take that time, come up with a wonderful out of the box answer, and that is going to help you a lot. Anything you want to add this? Yes, so I'm definitely right. One more thing I want to say that most of the people will get disheartened when they don't selected in several interviews. Like they are seated for two times, three times, and four times, and when they don't get selected, they will feel disheartened and their confidence will go down. So ये चीज नहीं करना है। हमने देखा है, इनफैक्ट काफी लोग जो ज्वाइन किए उसमें से पता भी होगा कि लास्ट ईयर जब हमारी क्लासमेट्स थी, उन्होंने सेवरल इंटरव्यूज दिए, उन्होंने फेल हुआ, लेकिन उनसे क्या क्या आपके कहाँ कहाँ आपकी गलतियां हुई है उसको अगर आप ज्यादा मेजर करोगे, उसको इवेल्युएट करोगे और उसके बेस पे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तैयारी करोगे तो बेटर रहेगा। एंड जो लास्ट में उन्होंने जो प्लेसमेंट पाया वो इनफेक्ट प्लेसमेंट लास्ट में, क्योंकि उन्होंने जो 3-4 बार इंटरव्यू दिया उसमें उनको सफलता नहीं मिली, उसके बेस पे उन्होंने लर्निंग्स कंटिन्यू रखी एंड लास्ट में जाके क्रैक किया। सो जरूरी नहीं है कि अगर आपके 2 या 3 या 4 इंटरव्यू खराब गए तो आप में कोई कमी है या आप कॉन्फिडेंस लेस हो या आप कुछ कर नहीं सकते। कीप प्रिपेयरिंग एंड जो आपकी गलतियां है उसको इवेल्युएट करते रहें। सो यस, दैट्स इट। सो Right. So I also want to share some facts and data. So research has suggested that 52% of the personal interviewers fail because of bad presentation and because of vague career goals. Okay. So the problem is कि आपको क्लैरिटी नहीं होती है जब आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। राइट। बहुत सारी बेसिक चीजों, बिकॉज आप और बहुत सारी चीजों पे अपना बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत बेसिक चीजों पे पहले स्टार्ट करो, उस पे क्लैरिटी ले लो। अपना इंट्रोडक्शन, आपका करियर का गोल, वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट्स योर गोल इन द नेक्स्ट 5 years? सो उसका बेस्ट आंसर ये है दैट आई वांट टू यस। लर्न एज मच एज पॉसिबल। डोंट से आई वांट टू सिट एट योर साइड। मे बी अब सामने कोई जनरल मैनेजर बैठा हुआ है, तो आप 5 साल में जनरल मैनेजर नहीं बन पाओगे।
right? So that's a overconfident statement, and that's an outdated statement now. So the most safest answer is, if you have a good answer, very good. Otherwise, the safest answer is that I, learn everything that comes to me, and I build a strong ground for the next years to come in my first 5 years. Okay. Then, what do you want to do in life? Okay. If I give you this much money, and if I ask you to, spend that money, how would you spend that money? Right? So इससे बहुत सारी चीजें आपके बारे में पता चलती. So be aware. Do a SWOT analysis of your own personality. एक बार देखो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्यूचर के क्या थ्रेट्स हैं. तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बन जाएगी. एंड दैट हेल्प्स इन द पीआई. उससे रिक्रूटर को ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि इस बंदे को मालूम है इसको लाइफ में क्या करना. So with that, we are done with the PI also. Last, 1 or 2 minutes, I want you to tell us something about Dashrath कि ऑफ कैंपस बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं प्लेसमेंट्स के, बिकॉज इन कैंपस आजकल थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा है, मार्केट डाउन है एंड प्लेसमेंट्स कम हो रही हैं सबकी. ऑफ कैंपस कैसे लोग अपॉर्चुनिटीज देखें, व्हाट डू दे डू एंड हाउ टू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज. यस. सो कोई किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है, वो लगता है कि ऑफ कैंपस मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, जब कंपनीज आ ही नहीं रही कैंपस में तो बाहर कहाँ से वैकेंसी होगी, बाहर से कैसे रिक्रूट करेंगे, हम रिक्रूटर को कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे. बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है कि जितने आपके एल्यूमनाइज है उनसे पहले कनेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए. लिंक्डइन को आप अपना हैबिट्स बनाइए. जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स की जो लिंक्डइन होता है उनको बस इंस्टॉल तो है लेकिन वीक में एक बार या 2 में एक बार, बहुत ही मतलब रेयरली फ्रीक्वेंट वो लोग विजिट करते हैं लिंक्डइन को, स्क्रॉल नहीं करते, देखते नहीं है. लेकिन लिंक्डइन जब आप इंस्टाग्राम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा, बिलीव मी, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द अपॉर्चुनिटीज कि क्या कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कितनी रिक्रूटमेंट्स आ रही है. नाउ डेज इफ आई हैव लिंक्डइन, अगर मैं 2 मिनट के लिए भी लिंक्डइन ओपन करूँ तो मेरे पास कम से कम ऐसी 8 जॉब्स होगी जो कि मेरे फील्ड से रिलेवेंट है. सो आई ज्यादा से एग्री. ज्यादा नेटवर्किंग पे आप काम कीजिए, अपने एल्यूमनाई के साथ कनेक्ट कीजिए कि आपके जो एल्यूमनाई है किस किस पोजीशन में कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे कैसे भी करके कनेक्ट कीजिए. दूसरा मेरा ये ओपिनियन है कि आपके जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होंगे उनसे आप ये कीजिए कि जो आपके एल्यूमनाई उनको फिजिकली इनवाइट दिया जाए आपके जो प्लेसमेंट ब्रोशर्स है उनको लेकर, इंस्टीड ऑफ मेल. अगर आप मेल कर देते हो सकता है उनके इनबॉक्स में पड़ा रहे, कोई देखे भी ना, क्योंकि अभी हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम तो पता है कि मेल को कैसे ट्रीट किया जाता है. सो अगर फिजिकली आप एक प्रेजेंट करने जाएंगे, सामने इनविटेशन देने जाएंगे अपने एल्यूमनाइज को, सो उनको एक अच्छा लगेगा. उनके टेबल पे जब आपका ब्रोशर रहेगा तो कहीं ना कहीं डेली रिमाइंड में उसके आता रहेगा कि नहीं, नो आई वांट टू डू दिस. सो ये एक अप्रोच होगा कि आप कैसे रिक्रूटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं. जो ऑफलाइन कैंपस की बात करी, लिंक्डइन, इंडीड, ये सारी एप्स कैसे चलानी है, इसमें कैसे रिक्रूटर्स को ढूंढना है, ये बहुत ही आसान है जब आप उसको डेली बेसिस पे चलाते हैं. इंस्टाग्राम के साथ जितना बार आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, यूट्यूब ओपन करते हैं, जब इतना ही टाइम आप लिंक्डइन को देंगे तो ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे कि कहाँ से रिक्रूटर्स आते हैं, कैसे अट्रैक्ट करना है उनको एंड ऑल. सो टैलेंट की जो स्किल्स बेस्ड अपना होता है उसकी कमी है, बट जॉब की आज की तारीख में भी कोई भी कमी नहीं है. अगर आप सही चैनल्स के थ्रू जाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो यू कैन ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम. आई ऑल्सो थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डे वन, जिस दिन से आप कॉलेज एंटर कर रहे हो, उसी दिन से अपना लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करना शुरू कर दो. बिकॉज यस. आई टेल दिस टू स्टूडेंट्स एवरी टाइम, एंड मेरे सीनियर्स ने भी मुझे बताया था कि लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर द प्रोफेशनल्स बट ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स. बिकॉज लिंक्डइन आपका एक प्रोफेशनल सोशल इमेज बनाता है. राइट? आपकी जो इंस्टाग्राम की इमेज है वो रिक्रूटर चेक नहीं करने वाला, बट समटाइम्स इट डज हैपन कि आपका रिक्रूटर आपका लिंक्डइन इमेज या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के देखेगा ही देखेगा. ठीक है? सो लिंक्डइन पे आप डे वन से अगर अपना कमांड्स जो है स्ट्रांग रखते हो, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड योर कॉलेज. ठीक है? तो उसी दिन से वर्क ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, समरी बनाओ उसका अच्छा सा, एक्सपीरियंसेस ऐड करो, अचीवमेंट्स ऐड करते रहो, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस ऐड करो, रीच आउट टू पीपल. मैंने इंजीनियरिंग के टाइम पे एक गोल बनाया था कि मुझे हर हफ्ते एटलीस्ट 30-40 रिक्वेस्ट भेजनी ही भेजनी. राइट? तो अपने आसपास के लोगों को रीच आउट करो थ्रू लिंक्डइन, आस्क देम जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उनको क्वेश्चन करो,
उनसे पूछो कि वो जिस कंपनी में है वहां पे कैसा काम है, कैसा कल्चर है, वहां पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके इंटरव्यू के टाइम पे, उनसे आप लोग फीडबैक लो। ऑल ऑफ दिस हेल्प्स यू अलॉट। एंड एक चीज और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि माइंडसेट, जो कि हमारा टाइटल भी है इस पॉडकास्ट का, द माइंडसेट, वो बड़ा जरूरी है। बिकॉज डे वन से हम ये सोचते हैं अरे चलो ठीक है, प्लेसमेंट तो कॉलेज करवा देगा ना, उसके लिए तो प्लेसमेंट सेल है, हमारी प्लेसकॉम है, वो करवाएगी हमारी प्लेसमेंट। बट जब एंड होने लगता है कॉलेज, तो समझ में आता है कि यार प्लेसमेंट तो इतनी अच्छी आ नहीं रही, और जो आ रही है उनमें हम सिलेक्ट नहीं हुए। राइट? सो डे वन से कॉलेज के ऊपर मत डिपेंड, ऑलवेज हैव अ सेफर ऑप्शन आउटसाइड द कॉलेज। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड टू ऑप्शंस इन माय हैंड ऑफ कैंपस। इसलिए आई वाज एट अ कैपेसिटी कि मैंने जो एवरेज प्लेसमेंट्स थी या फिर जो एवरेज पैकेजेस थे उनको ड्रॉप कर दिया। आई डिड नॉट सिट इन दोस प्लेसमेंट्स, एंड मैंने जो टारगेट किया था जिन कंपनीज में, मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए अपियर हुआ। राइट? दैट हैपेंड बिकॉज यस। मैंने अपना एक ब्रांड बनाया था लिंक्डइन के ऊपर, मैंने बहुत अच्छा नेटवर्किंग किया था अपनी सिटी में, लोगों से मिला था, रिक्रूटर्स के पास जा जाके बात करी थी, अपने फील्ड के लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ा था, अपने फील्ड से रेलेवेंट इवेंट्स में जाके बहुत बार ऐसा होता है आप इवेंट में बैठ के वापस आ जाते हो। आई व्हाट आई यूज्ड टू डू, एंड दशरथ हेल्प मी इन दैट वाज कि हम लोग इवेंट के बाद जो स्पीकर्स थे उनसे मिलते थे, जो लोग आते थे उनसे मिलते थे, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते थे, जिससे हमारा थॉट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग हुआ, हमारा आर्टिकुलेशन स्ट्रांग हुआ, हमारा आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव थिंकिंग, बीइंग अपडेटेड विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, ये सब कुछ चीजें बहुत स्ट्रांग थी। दैट हेल्प्स अ लॉट। In case you want to add anything in this, Dashrath, you can. Otherwise, we have some questions जो कि I will be taking up. Yes, definitely. Now we will take and forward for the Q&A sessions. Yes, Son, please take it So, up. yeah. So I have some questions जो कि हमें Google form में आए थे. I would expect sweet answers, one or two lines from you, and we'll quickly go through all the questions. The first is for the resume. So I'm going to ask you some questions about resume building. Someone has asked कि create a common CV for every company or create a company related CV for each company. I would suggest please make a CV related to your role, what is recruiter offering to you. जो रोल आपको रिक्रूटर ऑफर करता है उसके हिसाब से आप सीवी बनाइए. I agree. So I would add to this कि you don't have to make a CV that is company targeting. या बहुत कोई best company आ रही हो तो maybe you can do that much of hard work. But you should be making role specific CVs. मैंने 3 CV बनाए थे क्योंकि मुझे 3 roles के लिए अप्लाई करना था. So मैंने हर एक CV को कस्टमाइज किया था. So just do that. Second, why do companies prioritize GPA in a world of real skills? तो सीजीपीए को प्रायोरिटी देने के पीछे एक ये मे बी आई एम गेसिंग द रीजन आई मे नॉट राइट बट ये हो सकता है कि पर्सन्स का जो अपॉर्चुनिटीज के टुवर्ड्स वो कितना हार्ड वर्किंग है वो देखने के लिए सीजीपीए को प्रायोरिटाइज करते हैं कि हाउ कंसिस्टेंट ही इज टुवर्ड्स द हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स. अगर आप 10th 12th ग्रेजुएशन थ्रू आउट योर एकेडमिक्स अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है सो यू आर डेफिनेटली कि आप हार्ड वर्किंग होगे. कोई भी बंदे को देख के मेरे में ये परसेप्शन आएगी कि नहीं भाई इसने अच्छी मेहनत करी होगी. सो दैट्स व्हाई मे बी कंपनी प्रायोरिटाइज द सीजीपीए ओवर द स्किल्स. दिस इज माय ओपिनियन. मे बी इट इज डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट अदर थिंग्स. आई टोटली एग्री. सो आई थिंक एक बेसिक बेंचमार्क होता है, हम लोग ऑब्वियसली जितनी हमारी इंडियन सोसाइटी है, इट इज स्टिल फंक्शनिंग इन दैट वे कि वी जज अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स. मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 60% एक क्राइटेरिया रहता ही है कि आपको उतना तो मिनिमम होना ही चाहिए. उसके ऊपर देन एवरीवन इन द सेम लाइन और इन द सेम बकेट. ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट फॉर सिटिंग इन दोज प्लेसमेंट्स, don't let it drop down below 60%. And if you are an engineering graduate, don't let it go down below 7. I think 7 is a decent average CGPA. उसके ऊपर जितना भी हो चलेगा. Okay, so next question. Since we have only 4 minutes, we are left with 6 questions. So we will take very short answers in this, Dashrath. Third is, how does your CV stand out? आपका CV stand out कैसे करता है?
सीरीज की बात करें तो जैसे हमने सीरीज के सेक्शन के दौरान डिस्कस भी किया कि आपके सीवी में क्या क्या चीजें मेंशन रहती है, उस बेसिस पे आपका रिफ्लेक्ट करता है कि जितना ब्रीफ आप रिक्रूटर को अपने बारे में बता सकते हो उतना ही ज्यादा वो आपके सीवीज की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो दिस इज हाउ योर सीवी में डिस्टिंग फ्रॉम द अदर वंस। राइट, आई वुड सजेस्ट कि उसका फॉर्मेटिंग जैसा कि दशरथ ने बोला, अच्छा रखो, ब्रीफ रखो। सेकंड, मेजरेबल रखो हमेशा जो भी आप लिख रहे हो। थर्ड, लेट इट बी ऑथेंटिक, उसमें कोई भी बड़ी बड़ी बातें मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा सीवी कॉपी करिए एंड उसको एक बार चैट जीपीटी पे डालिए एंड उसको बोलिए कि ऐड कीवर्ड्स दैट आर रोल स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर रोल। राइट, तो वो ऑलरेडी आपके सीवी में कीवर्ड्स ऐड कर देगा एंड दैट वुड हेल्प यू गेट शॉर्टलिस्टेड। एटीएस फ्रेंडली भी आप प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो, तो वो आपका एटीएस के थ्रू जो रेज्यूमे है वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट टू डू व्हेन यू डोंट नो एन आंसर। आई थिंक दशरथ ने ऑलरेडी वो कवर किया है, दैट यू हैव टू जस्ट से दैट आई डोंट नो दिस, आवाज कुछ हो रही है। but I'll learn from this. So the next question, Dashrath, is should you show your original self in the interview, or you should show confidence and use all the tactics that are there? Interesting question. सो मेरा जितना एक्सपीरियंस है एंड मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो रिक्रूटर्स है उन्होंने आपसे ज्यादा दिवालियां देखी हुई है। सो ऑनेस्ट रहिए, जो भी अपना ऑथेंटिक रहिए, जो भी आपको आता है उसी को वी कैन डू अदर थिंग्स। सो मेरा यही ओपिनियन, जितना भी आप बोलते हैं रिक्रूटर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ऑनेस्ट रहिए, ऑथेंटिक रहिए, क्योंकि रिक्रूटर से वो आपको तुरंत कैच कर लेगा अगर आप ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने स्टेटमेंट को, अगर कुछ फैंसी वर्ड यूज कर लिए या ऐसा कुछ आपने जो नहीं किया है अगर उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई की आपने, तो रिक्रूटर विल इमीडिएटली कैच यू एंड दैट विल बी योर रॉन्ग इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द पैनल। करेक्ट, आई टोटली अग्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक थोड़ा ये जरूरी है कि आप अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट वहां पे शो करें। ठीक है, ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। इट्स इम्पोर्टेंट कि बहुत बार हमें अंदर नर्वसनेस फील हो रही होती है, अंदर बहुत सारे इमोशंस फील हो रहे होते हैं, बट हम बाहर अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करते हैं, बोल्ड प्रेजेंट करते हैं। सो वो करना बड़ा जरूरी है। एंड उसके लिए आई वुड नॉट से कि दिस इज टैक्टिक्स और समथिंग, दिस इज जस्ट सिंपल इमोशनल इंटेलिजेंस। राइट, आप किस तरह से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हो एंड बाहर क्या यस। दिखा रहे हो। राइट, सो यूज ईआई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एनी लैंग्वेजेस टिप्स कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं फॉर दोज हु आर स्टडिंग इन स्टेट बोर्ड। जैसे सो हमने ड्यूरिंग द सेशन डिस्कस किया कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से इंग्लिश आप सीख सकते हैं। आप डेली हैबिट्स में जब लाएंगे उसको, इंग्लिश सीखने का मूवीज आप जो देखते हैं इंग्लिश में देखिए, न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़िए, जो टॉकिंग का आपका जो स्टाइल है पूरा हिंदी में बात करें, ट्राई कीजिए कि आप इंग्लिश में कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, तो इसी तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं आप। करेक्ट, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट इंग्लिश सीखने के लिए देर इज अ क्लब कॉल्ड टोस्ट मास्टर्स। ठीक है, ये एक ऐसा क्लब है जो कि किसी भी अच्छी सिटी में अवेलेबल होगा। थोड़ा सा प्राइजी होता है उसका मेंबरशिप, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट इट इज वर्थ इट। उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने में बहुत मदद होगी। ज्वाइन दिस टोस्ट मास्टर्स क्लब। वहां पे दे गिव यू प्लेटफॉर्म्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी इंग्लिश दोनों इंप्रूव होने में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे अच्छी रख सकते हैं इवन व्हेन वी आर फीलिंग नर्वस। हाउ डू वी improve upon our body language, how do we keep our body language good, presentable even when we are feeling nervous? तो ड्यूरिंग नर्वस सिचुएशन, जैसे कि मैंने इंटरव्यू के सेक्शन में भी बात किए थे कि आप अगर आंसर आपको नहीं मालूम है, आपको कोई ऐसा टेक्टिक ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछ लिया, तो टेक योर टाइम्स, नर्वस होने की जरूरत नहीं, टेक योर टाइम्स। लेट मी जो 30 सेकेंड्स के लिए पॉज लीजिए एंड आपका बॉडी लैंग्वेज है उसको भी ज्यादा फोकस कीजिए। आप जो बोल रहे हो उसमें अटक अटक के ना बोले, एक फ्लुएंसी के साथ बोलते रहे। ये जो काफी माइनर चीजें हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज की, वो ज्यादातर ध्यान रहेगी। ज्यादा आप अगर ज्यादा हाथ हिला के भी बात करते हैं तो इंटरव्यू में आप डिस्कशन नहीं कर रहे, कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो आप ज्यादा जो आपके हाथ के मूवमेंट्स है वो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप एक स्टेबल कंडीशन में होने चाहिए। जो आपका ओपिनियंस है, अगर रिक्रूटर में अगर आप में कोई डिस्कशन हो रहा है, सो दैट यू कैन
यस और नो, आपको अगर ये बॉडी पोस्चर से आपको उनको पता चलना चाहिए कि यस यू आर अग्रीइंग विद द फैक्ट और यू आर नॉट अग्रीइंग विद द फैक्ट, दैट्स ऑल। आपको आपके जो बॉडी पोस्चर से उनको पता चलना चाहिए कि यू आर सेटिस्फाइड विद और यू आर नॉट। सो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही मिनिमल रखना है, ज्यादा मूवमेंट नहीं रखना है किसी भी बॉडी का। राइट। सो फॉर दैट यूपीएससी के बहुत सारे इंटरव्यूज अवेलेबल हैं आपके यूट्यूब के ऊपर। यू कैन गो ओवर देयर एंड चेक के यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। एंड बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल रखने के लिए सी, आपको जब भी नर्वसनेस फील होती है ना, तो आपकी बॉडी रिएक्ट्स इन अ नेचुरल वे। ओके, आपके शोल्डर थोड़े टेंस हो जाएंगे इस तरह से, और आप ऊपर देख के सोचना शुरू कर दोगे, और मे बी आप अपने फिंगर्स को दबाना शुरू कर दोगे, छेड़ना शुरू कर दोगे। सो व्हाट्स बेटर इज कि ट्राई एंड प्रैक्टिस कीपिंग योरसेल्फ काम। सो जब भी आप एक टेंस सिचुएशन में हो, एंड अगेन इट्स अ प्रैक्टिस दैट टेक्स टाइम, कि जब भी आप किसी टेंस सिचुएशन में हो, टेक सम डीप ब्रेथ्स एंड ट्राई टू कीप योरसेल्फ काम। आज भी I had some situation and this is what I was practicing and this is what I keep practicing। जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आए जो कि आपको अगर आप नहीं हैंडल कर सकते, आप थोड़ी टेंस है, जस्ट टेक सम डीप ब्रेथ्स एंड ट्राई टू कीप योरसेल्फ काम। उसकी वजह से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपने आप इंप्रूव होती रहेगी। ओके, so that's the best thing to improve your body language. You just have to try and keep yourself calm, take some deep breaths, and that is it. So that's it, Dashrath. So any final conclusion, any final concluding messages that you would like to give over here, and then we can wrap this up. Yes, so throughout the discussion, uh, I hope that you will definitely get insights from our discussions. Yes, there are some glitches. We are not ready for that, but next Hmm. time we will definitely improve ourselves better and ज़्यादा से ज़्यादा आपको insights दे पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाए, यही हमारा टारगेट रहेगा। कंक्लूड करते हैं कि जो जीडी डिस्कशन एंड जीडी इंटरव्यू जो मेजरली लोगों का प्रॉब्लम्स होता है, कॉन्फिडेंस इज द मेजर थिंग। आपको कॉन्फिडेंट रहना है किसी भी सिचुएशन में, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्ड योर सीवी ऑन द बेस्ड ऑफ whatever you mentioned, that it should be a brief and whatever your actual skills are reflects in your CV. So these are the some things that you have looking for. Yes, Soham, please conclude the session. Yeah, so from my side, I would just say कि always aim for the best placements। आपका aim हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। At the same time, जिस चीज से हमने स्टार्ट किया था, आपको पता होना चाहिए मार्केट की इस समय कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंगली सेट योर एक्सपेक्टेशन। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि जो मेरे लिए बेस्ट प्लेसमेंट थी वही दशरथ के लिए भी हो, वही आपके लिए भी हो। यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर यू। बहुत लोग ऐसा भी होता है जो लोग पैसे को शायद उतनी अहमियत नहीं देते, उनके लिए कंपनी या फिर कल्चर ऑफ द कंपनी इज मोर इम्पोर्टेंट, तो वो उस तरह से चूज करते हैं। हमारे बैच में भी ऐसे लोग, राइट। सो इट डज नॉट मैटर कि आपकी पहली प्लेसमेंट, दूसरी प्लेसमेंट कहाँ पे है। जैसा कि दशरथ ने बोला, इन द फॉर्मेटिव ईयर्स आपका लर्निंग स्पिरिट कितना है। आप कोई भी चीज को 24 आवर्स के अंदर अंदर, ये क्रेड के सीईओ ने भी बोला था, आप 24 आवर्स के अंदर सीख सकते हो कि नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो आपका लर्निंग एजिलिटी कितना है, आप कितना सीख पाते हो कम से कम टाइम में, वो आपको बताएगा कि आपके आने वाला करियर कैसा होने वाला है। सिर्फ एक जॉब या फिर सिर्फ एक प्लेसमेंट से वो डिसाइड नहीं होगा कि आपका पूरा करियर कैसा होगा। अगेन, एम फॉर द बेस्ट प्लेसमेंट्स, बट देन डोंट बी disheartened with whatever you get in the end, at the end of the day। and in case you've liked the episode, please hit the like button, hit the subscribe button, hit the bell icon. It's my time to say all of that now. And thank you, Dashrath, the assistant manager CSR, the person with the highest placement package in the CSR. Thank you for being a co-host with me and being a guest with me. It was a pleasure hosting you. I hope you had a brilliant experience.